डॉक्टर ईशान अवधूत शिवानंद हॉल ऑफ योगिक साइंसिस एंड होलिस्टिक डिवेलपमेंट का उद्घाटन किया गया। IIT रोपड़ के मानयोग डायरैक्टर प्रोफेसर राजीव आहूजा की अगवाई हेठ डॉक्टर ईशान अवधूत शिवानंद हॉल ऑफ योगिक साइंसिस एंड होलिस्टिक डिवेलपमेंट ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਗਰ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਧਿਆਨਮਤ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਾਨ ਅਵਧੂਤ शिवानंद स्कॉलरशिप ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ IIT ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ 10 ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਯੋਗਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਸੰਗਿਆਤਮਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਗਰ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਿਚਕਾਰ पुल बनाने वाले भविष्य के विद्वान तैयार करना है। सबसे पहले तो आप सब लोगों का यहाँ स्वागत है IIT रोपड़ में। आप लोग से ज्यादातर पंजाब से आए हैं, तो ये आपका अपना IIT है। जो आज हमने जो इनॉग्रेशन किया है, ये होलिस्टिक वेलबींग के लिए है, कैसे एक मनुष्य का संपूर्ण निर्माण करना है। क्योंकि आजकल के जमाने में जैसे इतना टेंशन वाला लाइफ है, हमारे जो IIT के स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, ये स्टाफ है, दे आर आल्सो अंडर स्ट्रेस, they have to perform. So this center will give them a guidance how to get a mental peace actually. Then they can perform better and they can deliver better. So this is the idea. तो यहाँ से केवल ये खाली IIT रोपड़ के लिए नहीं है, ये this is a beginning for whole Punjab and whole India. So this will be a role model for whole India, this kind of activity, this kind of a center. तो हम जो हमारे पंजाब में भी जो issues हैं, some of the issue may be related to the drugs or something, they can also be covered in this well-being. So वहाँ पे जो हम यहाँ पे जो best practice है वो हम पूरे पंजाब में लगाएंगे and as well as the whole India we will spread it. So wherever these kind of issues are coming, this kind of exercise, this kind of the courses what we are going to run with Ishan ji, and Ishan ji is mostly working in the US actually, and he is kind enough to donate funding for this kind of establishment of this center. Without his support and his commitment for financially, we cannot do this one. So we are very grateful to Ishan ji, who has taken this initiative for us actually when we approached him, and he was so nice. He said that how I can help you. So he is very open-minded and he want to do for India. So there are those Indians who are living abroad want to do something for India, and Ishan ji is one of them. And he has a follower all over the world. So it's our pleasure also that he is here and this center is inaugurated by him himself. So this is a great moment for IIT Ropar, and we all thanks to him and his team coming from Gurgaon or other places in India, and a lot of his followers here also, although we have not told them not to come, but they have find out and they come themselves. So this is the way people are following his teaching. So what is teaching, this is a real teaching and which can be implemented everybody's life, not only staff, faculty, but any human. If you'll follow what Ishanji is saying, your life will be peaceful and you will grow and with a healthy life. Thank you. ਸਰ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? तो ईशान जी आप बताइए। जी, जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो एक नौजवान क्यों ड्रग में फंसता है, क्योंकि उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उसके अंडरलाइंग कॉजेज हैं जो अनडायग्नोस्ड है, उसको वो सपोर्ट मिला नहीं। तो जब हम इस सेंटर पे अब काम शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिसर्च करेंगे, तो हम प्रमोट करेंगे कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ अच्छी हो सके, किस तरीके से एक सात्विक जीवन एक नौजवान जी सके। क्योंकि आज अगर आप एक नौजवान को ड्रग्स से निकाल भी दोगे और जो अंडरलाइंग कॉजेज थे जिसकी वजह से वो ड्रग्स में पड़ा, आप उन पे फोकस नहीं करोगे, उस पे काम नहीं करोगे,
तो वो बच्चा फिर गिर सकता है। और इसलिए हम कहते हैं कि ड्रग रिहेबिलिटेशन एक रिवॉल्विंग डोर क्राइसिस है कि आप एक बार निकले और फिर दूसरी तरफ वापस आ गए। तो यहाँ पे हम काम करना चाहते हैं कि रूट कॉज से हम इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म करें। और थोड़ा टाइम लगेगा, रिसर्च लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन हम ये काम करने को तैयार हैं। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ? ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? So today we are going to meet governor also, and in the evening. So we have already explained to him, and our governor sir is working already with all the academic institution in Punjab to tackle these drug issues, and our vice chancellor meeting is already done. So we are going to meet also governor sir today and try to explain to him and what kind of support from Ishanji and from Wheel Foundation we can give to the Punjab. That's one of the agenda of today's meeting actually. ईशान जी, एक हरेक पेरेंट्स की एक कंप्लेंट जरूर होती है कि बच्चे मोबाइल पे रहते हैं और क्या कहते हैं आईआईटी में जहाँ कोई भी फील्ड हो तो उनका काम क्या होता है कि ऑनलाइन सब कुछ करवाना। क्या इसके लिए भी आप दिमाग में कुछ ऐसा डालते हो कि बंदा वो मोबाइल छोड़ के आराम से वो काम करे? आप मोबाइल छोड़ोगे कैसे जी? अब तो पूरी दुनिया मोबाइल पे होने वाली है। और अगर हम कहेंगे कि बच्चे को मोबाइल हटा दो तो फिर वो आधुनिक दुनिया में काम कैसे कर सकता है? तो हम पेरेंट्स को भी कहते हैं और हम बच्चों को भी कहते हैं कि सीखो। अगर हम टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं काम के लिए तो प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी और मॉनेटरी बेनिफिट होगा। और अगर हम टेक्नोलॉजी का काम सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करेंगे तो हमारा दिमाग कद्दू बन जाएगा जी, वो भी उबला हुआ। तो इसलिए बहुत जरूरी है डायरेक्शन देना और टेक्नोलॉजी का बहिष्कृत नहीं करना, वरना पेरेंट्स और बच्चों में लड़ाई हो जाएगी। बल्कि टेक्नोलॉजी को समझना और दिशा देना, और हम वही काम करते हैं एज एजुकेटर्स एंड एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो कुछ भी बुरा नहीं है और उसका सही उपयोग आना चाहिए। फिजिया से तो कंबाइन नहीं कर सकते हो तब तक दुनिया का भला नहीं हो सकता। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू ईशान जी, राजीव जी एंड अथर्व हु गिव अस अपॉर्चुनिटी फॉर लास्ट 1 year टू स्टार्ट वर्किंग। तो अभी ईशान जी जो कर रहे हैं वो आपने बताया सोशल मीडिया क्यों नहीं छोड़ते, तो जरूरी है कि सोशल मीडिया में बंधे रहो जब तक आपको जरूरियात है। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आई प्रीच एंड एज अ पार्ट ऑफ व्हील्स एंड शिवयोगी फॉर मेनी इयर्स, जरूरी है वही करो और विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट इम्प्रूव। सो आई वांट पर्सनली थैंक राजीव जी टू प्रमोट रोपर एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस एंड थैंक्स टू ईशान जी, उन्होंने इतना सहकार दिया, हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं। अथर्व इज अ की पर्सन हु हैज हेल्प्ड अस, पूरा टीम है यहाँ पे, तो ही इज द वन हु ब्रॉट अस हियर एंड ये दोनों हमारे बहुत योगदानी है। सो आई वांट टू थैंक देम ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर नेशन। और एक चीज मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑल द पीपल हु आर एक्सपेट्रिएट, वी मस्ट गिव बैक टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर टू इंडिया, कि हम यहाँ से पढ़ के गए हैं, हमको यहाँ देना है। एंड सनातन इज बेस्ट वे टू टीच IKS सिस्टम एंड देयर इज नोबडी बेटर देन ईशान जी। सो धन्यवाद ईशान जी फॉर गिविंग योर टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर। वो हर एक जगह देते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ सबको, अपनी आंखों को आप IIT रोपर पे रखिए। दिस इज गोइंग टू बी द एपी सेंटर ऑफ द मेंटल हेल्थ रेवोल्यूशन, क्योंकि हर कोई बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है, कोई भी समाधान पे बात नहीं कर रहा। और यहाँ पे हम समाधान पर काम करने वाले हैं, शोध करने वाले हैं, और जो बच्चे यहाँ से पढ़ लिख के निकलेंगे वही कल नए भारत के लीडर्स बनेंगे। सो कीप योर आईज ओपन, वी आर स्टार्टिंग अ रेवोल्यूशन। थैंक यू। वन क्वेश्चन, जैसे सर आजकल ज्यादा बढ़ रही है, उसके लिए क्या खास? हाँ जी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हर एक में स्ट्रेस है, किसी न किसी काम स्ट्रेस लेवल बच्चों से लेके बड़ों तक वही तो उसी के लिए है जी। स्ट्रेस बढ़ रहा है क्योंकि अगर आप देखो, आपकी गाड़ी है, गाड़ी में आप लोग लादते रहोगे और गाड़ी की कैपेसिटी नहीं बढ़ाओगे तो गाड़ी ठप हो जाएगी ना। उसी तरीके से हम पे एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है और हम अपने पे काम नहीं कर रहे। इसलिए रेजिलियंस ट्रेनिंग, हम यहाँ पे रेजिलियंस ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं कि अगर दुनिया में मुश्किलें बढ़ रही हैं, हमसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, तो हम ह्यूमन पोटेंशियल को कैसे बढ़ाएं। तो दिस इज अ ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन पोटेंशियल प्रोजेक्ट दैट वी आर वर्किंग अपॉन, कि इसको कैसे ग्रो किया जा सकता है ताकि हम और ज्यादा रेजिलियंट हो। अगर हम बोलेंगे कि चिंताएं कम करो तब स्ट्रेस हटेगा, तो चिंताएं तो कम नहीं होने वाली। अगर आप पारिवारिक जीवन में हैं, अगर आप कामकाज कर रहे हैं, चिंताएं बढ़ेंगी। तो आपको अपनी सहनशीलता बढ़ानी है
और उस पे हम काम कर रहे हैं। वही टूल्स हम बच्चों को दे रहे हैं कि देखो, अगर आपको स्ट्रेस कम करना है, एक तरीका है सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में बैठ जाओ पेड़ के नीचे। और मैं एक आचार्य हूं, मैंने ये भी किया है। पर अगर हमें दुनिया को बदलना है तो हमें फोरफ्रंट में रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो IKS बेस्ड है, कि कैसे अपनी शक्ति बढ़ानी है, कैसे अपने पोटेंशियल बढ़ाना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम चैलेंज आए आप उसको फेस कर सको, जीत सको। ओके, थैंक यू। सर, अभी जैसे AI का टेक्नोलॉजी आ रहा है तो उसमें बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि AI का ड्रॉबैक्स भी है उसमें। AI का ड्रॉबैक तब होगा अगर अवेयरनेस नहीं होगी और टेक्नोलॉजी की समझ नहीं होगी। आज की तारीख पे इंटरनेट पे कितनी सारी चीजें हैं जो AI स्लॉप है, हम बता ही नहीं सकते कि क्या असली है क्या नकली है, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो पार्टनरशिप आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज अ पार्टनरशिप बिटवीन academics, there's a partnership between faith leaders, there's a partnership between intellectuals, और ये पार्टनरशिप है तो ही हम बच्चों को अवेयरनेस दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी आदमी लैप्स कर गया तो आपके एकेडमिक्स कुछ बोलेंगे, फेथ लीडर्स कुछ बोलेंगे, तो स्यापा हो जाएगा, है ना। हम सबको एक ही बात बोलनी है, एक ही दिशा देनी है जो कि सही दिशा है, और वही पार्टनरशिप आपको यहाँ देखने को मिल रही है। और मैंने कहा ना, दिस इज अ रेवोल्यूशन। ऐसा कुछ दुनिया में कभी नहीं हुआ है जो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसलिए हमें अपनी नजरों को IIT रोपड़ पे रखना चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।